हेलो एवरीवन, एज यू गाइज नो हमने इसकी फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और उनके आंसर भी साथ में डिस्कस किए थे। अब हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ स्टार्टिंग से लास्ट तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं HPSC 2019 में आपको सबके बारे में पता लगे। आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि फर्स्ट पार्ट में हमने किन किन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर किसी का भी कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोले ताकि एज सून एज पॉसिबल हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द 51st क्वेश्चन। द टर्म रिग्रेशन वॉज फर्स्टली यूज्ड बाय। जो टर्म रिग्रेशन थी सबसे पहले किसने यूज़ की थी? ऑप्शन 1 इज कार्ल पियर्सन, सेकेंड सर फ्रांसिस गैल्टन, या रैंसिस लिकर्ट, या जेम्स बर्नौली। So the right answer is the term regression was firstly used by Sir Francis Galton. Option number B. Next question. When x and y stand for deviation of x and y series from their respective means, then the covariance of x and y series can be expressed as here n is equal to number of pair of observation. Option 1 is covariance of x and y is equal to under root summation of x and y upon n. Second, covariance of x and y 3 under root x summation of y upon n. Covariance of x and y third 3 root y summation of x upon n, and covariance of x and y summation of xy upon n. So the right answer is option number D. Next, which scale measure the psychological meaning of an attitude object using bipolar adjectives? First, semantic diminution scale. Next, semantic barrier measurement scale. Next, Likert scale या semantic differential scale. कौन सा पैमाना ध्रुवी विशेषणों का उपयोग करके एक दृष्टिकोण वस्तु की मनोवैज्ञानिक अर्थ को मापता है? ऑप्शन 1 सिमेंटिक डिमोनेशनल स्केल, ऑप्शन बी सिमेंटिक बैरियर मेजरमेंट स्केल, ऑप्शन सी लिकर्ट स्केल, या ऑप्शन नंबर डी सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा स्केल है जो मेजर करता है साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एन attitude object using bipolar adjectives? So the right answer is option number D, semantic differential scale. Next is the variation in measure due to some known or unknown influence that cause score to lean in one direction from another is called as perfect standard deviation, imperfect correlation, semantic standard deviation, या systematic variance. हिंदी में बोलेंगे कतिपय ज्ञात अथवा अज्ञात प्रभाव से मापों में आया विचलन स्कोर को किसी एक दिशा में दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा झुकने का कारण बनता है कहलाता है। फर्स्ट, पूर्ण मानक विचलन, अपूर्ण असंबंध, पदपत्ति मानक विचलन, या पद्धतिविद विचरण। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिस्टमैटिक वेरिएंस. Next, present value of an annuity can be expressed as where A is equal to annuity received at the end of each year, I the annual interest or discount rate. Present value, the present value of future annuity, n is equal to number of year for which annuity will last. So the right option is option number B, present value is equal to A, that is when annuity received at the end of year, is or summation of 1 upon 1 plus I, and here I stands for interest rate or the discount rate. Next question, standard error is standard deviation of population, variance of population, variance of sampling distribution, या standard deviation of sampling distribution. तो standard error क्या है? Standard error is standard deviation of
sample distribution. Option number D is right. Standard error is standard deviation of sampling distribution. Next, an data element in a data flow may be integer number, may be a real number, may be a binary number, or may be an imaginary number. So, the right answer is a data element in a data flow is a maybe a integer number, maybe a real number, or maybe a binary number. So option number 1, 2nd and 3rd is true, but it cannot be an imaginary number. डेटा प्रवाह में डेटा तत्व एक पूर्णांक संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है, बाइनरी हो सकती है या काल्पनिक हो सकती है. सो इट कैन बी अ पूर्णांक संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या भी हो सकती है और बाइनरी भी हो सकती है, बट ये कभी भी काल्पनिक संख्या नहीं हो सकती. Next question, which of the following distribution is used to describe the behavior of rare events? जो बहुत रेयर इवेंट्स को कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? दुर्लभ घटनाओं के व्यवहार को वर्णित करने में निम्न में से कौन से वितरण को काम में लिया जाता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? एज वी ऑल नो, जो रेयर इवेंट्स हैं उन सब के लिए हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट. नेक्स्ट, टाइप 1 एरर इज. टाइप 1 एरर क्या है? एज वी नो, हमारी दो टाइप की एरर होती हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. टाइप 1 एरर क्या बोलती है? रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, आइदर इट इज़ ट्रू. एंड टाइप 2 एरर क्या बोलती है? एक्सेप्ट द फॉल्स हाइपोथेसिस. सो वी नो ना, टाइप 2 एरर ज़्यादा हार्मफुल होती है एज कम्पेयर टू टाइप 1 एरर की. सो टाइप 1 एरर इज accepting the null hypothesis when it is false. Here H0 stands for null hypothesis and H1 stands for alternative hypothesis. Second option, rejecting the null hypothesis when it is true. Next, rejecting the null hypothesis when it is false, or accepting the null hypothesis when it is true. As we know, type 1 error is rejecting the ट्रू हाइपोथेसिस. जो हाइपोथेसिस सही है आपने उसको भी रिजेक्ट कर दिया है, दैट इज़ योर टाइप 1 एरर. और अगर टाइप 2 एरर के बारे में पूछे तो कौन सी एरर है? जब आप फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो, दैट इज़ योर टाइप 2 एरर. ओके. नेक्स्ट, द प्रोसीजर ऑफ मूविंग फ्रॉम जर्नल टू मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन इज समटाइम कॉल्ड एज. फर्स्ट ऑप्शन, रिवर्स फ्यूनल अप्रोच, बॉटम्स अप अप्रोच, रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच या फ्यूनल अप्रोच. सामान्य से विशेष प्रश्न तक चलने की प्रक्रिया को कभी कभी कहा जाता है उल्टी फनल, ऊर्ध्वगामी अवधारणा, प्रतिबंधित अवधारणा या फनल अवधारणा. सो द प्रोसीजर ऑफ मूविंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक क्वेश्चन इज समटाइम कॉल्ड एज. Sometime called as funnel approach. Option number D. Next, government policy concerned with taxing and spending decision of a government. अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी किसके रिगार्डिंग है? टैक्सेशन के रिगार्डिंग है. दीज आर योर फिस्कल पॉलिसी. और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रिवेन्यूज़ की रिगार्डिंग है, दीज आर द पार्ट ऑफ योर मॉनेटरी पॉलिसीज़. फिस्कल पॉलिसी किसके अंडर होती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर. और जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है वो उसको कौन हैंडल करता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एज वी नो, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऑल दीज आर अवर मॉनेटरी पॉलिसीज़. एंड एग्जिम पॉलिसी क्या है हमारी? एग्जिम पॉलिसी इज बेसिकली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी. ठीक है. जो फिस्कल पॉलिसी हमारी रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की रिगार्डिंग हो गई. मॉनेटरी पॉलिसीज़ आपकी किसकी रिगार्डिंग है? फाइनेंशियल रेवेन्यू के डिसीजन की रिगार्डिंग है. प्राइसिंग पॉलिसीज़, आप कितना प्राइस सेट करोगे उसके रिगार्डिंग आपकी प्राइसिंग पॉलिसी, जिसमें आपको प्राइसिंग डिस्क्रिमिनेशन की जो डिग्री पढ़ते हैं, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वो आपकी प्राइसिंग पॉलिसी का पार्ट आता है. दैन वी हैव एन एग्जिम पॉलिसी. एग्जिम पॉलिसी इज बेसिकली और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी. उन सब के रिगार्डिंग, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स के रिगार्डिंग जो आपकी पॉलिसी रहेंगी, दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर एग्जिम पॉलिसी.
Next question, the process by which an individual select, organize and interpret information input to create a meaningful picture. क्वेश्चन क्या बोलता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति दुनिया की एक सार्थक तस्वीर बनाने के लिए सूचना आदान प्रदान, आयोजन और व्याख्या करता है। वो क्या करता है, जितनी भी उसके पास इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेगा, एक मीनिंगफुल पिक्चर तैयार करने की कोशिश करता है। तो दैट मीन वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपनी परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। बिलीफ तो नहीं बना सकता, ना ही वो उसका एटीट्यूड है, ना ही उसका मोटिवेशन है। वो पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग उसकी परसेप्शन है जो उसने अपने माइंड में क्रिएट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, adopter categorization on the basis of relative time of adoption of innovation concept are innovator, early adopter, early majority और the late majority। नवाचार की अवधारणा को अपनाने के सापेक्ष समय के आधार पर अडॉप्टर वर्गीकरण इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और ब्लैंक है। दीज आर laggards, these are sust, that is option number B. Next question, Rogers define the spread of a new idea from its source of invention or the creation on its ultimate user or adopters. The definition is related with रोजर्स आविष्कार के अपने स्रोत या अपने अंतिम उपकार्यकर्ताओं या अडॉप्टर में से एक विचार के प्रसार को परिभाषित करता है। यह परिभाषा संबंधित है कस्टमर अडॉप्शन प्रोसेस, इनोवेशन डिफ्यूजन प्रोसेस, आइडिया जनरेशन प्रोसेस या आइडिया डिफ्यूजन प्रोसेस। किसके रिगार्डिंग है ये आपकी 64 का आपका रहेगा इनोवेशन डिफ्यूजन प्रोसेस, योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, the 5 competing concepts under which organization conduct marketing activities are production concept, product concept, selling concept, marketing concept and आपको पता है ना हमारे मार्केटिंग में कितने आपके 5 कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोशल कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बोलता है जितना भी प्रोडक्शन किया जाएगा सारा बिकेगा, आपको मार्केटिंग पे खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आपको प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करें, उनको आपके प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस बतानी है। मार्केटिंग, आपको नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ अडॉप्ट करने हैं, प्रमोशन टेक्निक्स का यूज़ करना है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। इन सोशल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आपको काम करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने आप को एंगेज करना पड़ेगा, तभी लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। सो 65 को का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज मैच द अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट विद द ईयर ऑफ डेवलपमेंट। कौन से साल में कौन सी मैनेजमेंट अप्रोच बनी है। फर्स्ट, क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच आपकी कब बनी है, नाइनटीन 1911 टू 1947 में। बिहेवियरल अप्रोच सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। क्वांटिटेटिव अप्रोच 1940 में एंड कंटेम्प्रेरी अप्रोच 1960 में। सो ऑप्शन नंबर 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। सो द राइट आंसर ऑफ 66 इज ऑप्शन नंबर ए। सेम इसका हिंदी में भी क्वेश्चन है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं और इसका भी आपका ऑप्शन नंबर ए ही आंसर रहेगा। Next question, a demand for a product which is not required for its own sake but because it is used to produce another product. That mean ऐसी डिमांड किसी प्रोडक्ट की जो वैसे यूज़ नहीं किया जा सकता बट उसका किसी फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ किया जाने वाला है, दैट इज़ योर क्रॉस डिमांड, इनकम डिमांड, डायरेक्ट डिमांड या डराइव्ड डिमांड। एक ऐसे उत्पाद की मांग जो उसके स्वयं के लिए आवश्यक नहीं है, इसका प्रयोग किसी अन्य उत्पादन का उत्पाद करने के लिए किया जाता है, दैट इज़ योर डराइव्ड डिमांड, जो उसकी नीड को डराइव कर रही है कि आपको उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको दूसरे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग व्हाट नीड टू बी डन, हाउ इट विल बी टू डन एंड हु इज़ टू डन टर्म इज एसोसिएटेड विद
ये डिसाइड करना है क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ, एज वी ऑल नो, ये डिसाइड करना है कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, दीज आर द पार्ट ऑफ प्लानिंग. ये निर्धारित करना है कि क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, इसे कौन करेगा, दैट्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग. Managerial role and a contemporary model of managing was given by, it was given by Henry Mintzberg. An economic system in which resources are allocated and controlled by the government decision, जिसमें गवर्नमेंट का डिसीजन चलता है. दैट मीन क्या है आपकी, कमर्शियल इकोनॉमी कांट बी पॉसिबल, एक्सचेंज इकोनॉमी कांट बी पॉसिबल, डेमोक्रेटिक जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल, तो डेमोक्रेटिक तो हो नहीं सकता, दैट वुड बी योर कमांड इकोनॉमी. Next is threat to new entrant, threat of substitute, bargaining power of buyer, bargaining power of supply, and current rivalry are the part of, ये आपका है क्या, पोर्टर की 5 फोर्स मॉडल थे ना हमारा, threat of new entry, threat of substitute, bargaining power of buyer, bargaining power of supply, and the current rivalry. All these are the part of Porter 5 force model. Option number B. Research and development strategies, manufacturing strategies, marketing strategies, human resource strategies, financial strategies are a type of which strategies are. These are corporate strategies, competitive strategies, functional strategies, या organizational strategies. All these are the part of your functional strategies. A process of setting mutual agreed upon goals and using those goals to evaluate employee performance. इन गोल्स का आप यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए. दैट इज योर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम डिसीजन. लो लेवल, रेडली अवेलेबल, प्रोसीजर रूल्स एंड पॉलिसीज, या वेग. वेग किसी भी की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता. वेग का मतलब होता है क्लियरनेस नहीं है, बहुत ही अनक्लियर चीज़ें हैं, और वेगनेस कैन नॉट बी अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी डिसीजन. आइदर इट वुड बी प्रोग्राम डिसीजन और अ नॉन प्रोग्राम डिसीजन. हाउथॉर्न स्टडी इज एसोसिएटेड विद, हाउथॉर्न स्टडी किसने दी थी हमारी, एल्टन मायो ने दी थी. एंड जो हाउथॉर्न स्टडी है वो किसके रिगार्डिंग है आपकी, क्लासिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच, या कंटेम्प्रेरी अप्रोच. जो आपकी हाउथॉर्न स्टडी है दैट वाज गिवन बाय एल्टन मायो, दीज आर रिगार्डिंग योर बिहेवियरल अप्रोच. अ मार्केट फॉर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़, जहाँ पे आपकी सेकेंड हैंड गुड्स में डील किया जाता है, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल मार्केट, ओपन मार्केट, या कैपिटल मार्केट. एज वी नो कैपिटल मार्केट दो पार्ट है हमारी, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट में न्यू इशू सिक्योरिटी डील होती है, सेकेंडरी मार्केट में हमारी ओल्ड सिक्योरिटीज डील की जाती है. सो ए मार्केट फॉर ए सेकेंड हैंड सिक्योरिटी इज नॉन एज स्टॉक एक्सचेंज. जब आप शेयर बाजार में जब पैसा लगाते हो तो आप परचेज कर रहे हो, कोई उसको ऑलरेडी सॉल्ड आउट कर चुका है, इसकी वजह से आपने उसको परचेज किया है, दैट इज़ अ सेकेंड हैंड सिक्योरिटी फॉर यू. सो वी कैन से स्टॉक एक्सचेंज इज द पार्ट ऑफ सेकेंड हैंड सिक्योरिटी. Next, a voluntary group of like-minded peoples who join together in order to seek to influence government decision makers. These are pressure group, reference group, personal group, या bureaucrats. So the right answer is a voluntary group of like-minded people who join together in order to seek to influence government decision are pressure group. Next, a maximum price above which price of product is not allowed to sell. उससे ज़्यादा उसको आप बेच नहीं सकते, उससे ज़्यादा उसके मूल्य पर आप बेच नहीं सकते. इट्स कॉल्ड एज प्राइस वॉर, प्राइस सीलिंग, प्राइस कंट्रोल, या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ये तो हम सबको पता है. जो प्राइस सीलिंग है दैट मीन आपने प्राइस को एक सेट कर दिया, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गवर्नमेंट ने, आप उससे ऊपर जाके उस प्राइस पे बेच नहीं सकते. नेक्स्ट, a measure of effect on total national income of some component change in aggregate monetary demand is known as multiplier effect, price elasticity, high demand, या GDP. A measure of effect of total national income of some component change in aggregate monetary demand is known as
multiplier effect. Next, an organizational structure that assigns specialists from different functional departments to work on one or more project being led by the project manager is a definition of matrix structure. The process of monitoring and evaluating the nature and the direction of change in the business environment is known as environmental analysis. According to brand resonance model, match the stage of brand development with brand objective at each stage. Identity, meaning, response, या relationship. So, identity is regarding with deep brand awareness. Meaning is regarding with point of parity and the difference. Response is regarding with positive and accessibility reactions. Relationship is regarding with intense and active loyalty. A marketing system comprised of producer, wholesaler, and retailer acting as a unified system is known as vertical markets system. Next, a method in which company charges a fairly low price for a high quality offering is known as perceived value pricing, target return pricing, and markup pricing is known as value pricing. Booz, Allen, and Hamilton has identified 6 characteristics of new products. Select the wrong one. इसमें से जो बूज, हैलन और एलन ने जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है प्रोडक्ट की, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, उनमें से कौन सी नहीं है आपको ये बतानी है. First, new to the world product, that's a part of characteristics. New product line, that is also the part of characteristics. Addition to the existing product line, it's also the part of characteristics, but resegmenting is not the part of its characteristics. So option number D is right. Next is ABC are the partner in a firm. If A withdrew 3,000 at the beginning of each quarter with an annual interest rate on at a rate of 12%, तो आपको क्या करना है. 3,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है. क्या कर रहा है वो विड्रॉ कर रहा है हर क्वार्टर में. एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं आपके? 4 क्वार्टर होते हैं. तो 4 आपके क्वार्टर हो गए. इससे कितने परसेंट की रेट से? 12% की रेट से विड्रॉ कर रहा है. और कितने मंथ के लिए आप कैलकुलेट करोगे? ईयर की स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर रहा है तो 12 + 1 13 अपॉन 2. तो इससे आपको क्या आ जाएगा? आपका 6.5 आ जाएगा. उस परसेंट की रेट से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा. और आपका राइट आंसर आपका रहेगा नन ऑफ दीज. सो योर राइट आंसर वुड बी 900. ठीक है. If an amount is spent in the current year but against it revenue will be earned in the next year, then स्पेंड आपने करंट ईयर में किया है बट रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर में अर्न हो रहा है आपको. दैट इज़ द अमाउंट शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर. अ डेबिट बैलेंस शोज. डेबिट बैलेंस क्या शो करता है आपको? अ डेबिट बैलेंस शोज इफ अ अमाउंट इज स्पेंट इन अ करंट ईयर बट अगेंस्ट इट रेवेन्यू वुड बी अर्न इन द नेक्स्ट ईयर. तो आप कहाँ शो करोगे उसको? The amount should be carried forward to the next year. A debit balance show. Debit balance क्या show कर रहा है आपको? Money is owing to the firm and money is owing to some person. The firm has lost money or has incurred some expenses, both A and C. A debit balance show money is owing to the firm and the money has lost. The firm has lost money or has incurred some expenses. Option number D. Secret reserves are not permitted. कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स. ठीक है. फ्रॉम द फॉलोइंग सिचुएशन विच इज़ नॉट अ सिचुएशन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग. कैप्टिव, 2-part प्राइसिंग, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग या चैनल प्राइसिंग. तो चैनल प्राइसिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट which refer to EBIT, earning before interest and tax level at which
EPS remain the same irrespective of different alternative of debit equity mix is known as point of indifference. Marginal efficiency of a capital is also known as IRR, internal rate of return. Examine the following figure. ये फिगर आपको क्या शो कर रहा है? EPS आपकी स्ट्रेट लाइन है, DPS आपका इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, तो ये आपको क्या शो कर रहे हैं आपका? That shows dividend equalization reserve. ये आपका जो ग्राफ है ये किसके रिगार्डिंग है? के आपकी कांस्टेंट है, के डी आपकी कांस्टेंट है और के यू आपकी क्या है? के डी और के ई के बीच में है. के ई स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के डी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ डेट एंड के यू स्टैंड फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. द ग्राफ शो द इफेक्ट ऑफ leverage on cost of capital under net operating income approach, the effect of leverage on the cost of capital for unlevered firm, the effect of leverage on the cost of capital under net income approach, the effect of leverage on the cost of capital for levered firm. किसके रिगार्डिंग है ये आपका? That was regarding the effect of leverage on the cost of capital under net income approach, option number C. Next is which ratio indicate the number of times the fixed financial obligation are covered by the net operating cash flows generated by the companies. Which ratio indicate the number of times the fixed financial obligation are covered by net operating cash flows generated by company is debt service coverage ratio, option number D. Who defined TQM, total quality management? Total composite of a product and the service characteristics of marketing, engineering, manufacturing and maintenance through which product and services in a use will meet the expectation of a customer is given by A.V. Feigenbaum. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए. 97th का क्वेश्चन है आपका, कौन सी ईयर में क्या फॉर्म्ड हुआ? लेबर ऑफिसर की डेवलपमेंट कब हुई थी आपकी? 1931 में. लेबर वेलफेयर ऑफिसर इन 1948. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन 1990. Which one of the following is not the feature of social system model of human resource management? Informal relationship, social factors and output, conflicts, reward and punishment based on role boundaries. निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन प्रबंधक के सामाजिक प्रणाली मॉडल की विशेषता नहीं है? अनौपचारिक संबंध, उत्पादन में सामाजिक कारक, संघर्ष, भूमिका सीमाओं के आधार पर इनाम और सजा. So the right answer is reward and punishment based on the role boundaries is not the feature of social system model of human resource management. So 98 का आपका रियल आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी. Next, which of the following are the part of wage salary administration? Wage and salary survey, job evaluation, incentive. कौन सा आपका पार्ट है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का? सो वी कैन से वेज एंड सैलरी सर्वे, जॉब इवैल्यूएशन एंड इंसेंटिव, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 99. Then we have a last question, that is which activity is not related with human resource management? First, first is labor welfare, second trade union activities, counseling या development of employees. So the right answer is trade union activities are not regarding with human resource management, but labor welfare, counseling and development of employees are regarding with human resource management. सो ये आपके 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग, जो हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. किसी को फिर भी अगर डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें ताकि हम आपके डाउट्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकें. सो थैंक यू सो मच एंड
Please subscribe us for more videos. Thank you so much.